An aluminium vessel of a mass 0.5 kg contains 0.2 kg of water at 20 degrees centigrade. A block of iron of mass 0.2 kg at 100 degrees centigrade is gently put into the water. Find the equilibrium temperature of the mixture. Specific heat capacities of aluminium, iron and water are 910 joule per kg per Kelvin, 470 joule per kg Kelvin and 4200 joule per kg per Kelvin respectively. So हमें पता है कि जो total heat given by the iron block will be same as total heat gained by aluminium vessel and water. So इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. So mass of vessel into specific heat of, यहाँ पे mass of aluminium लिख देते हैं, mass of aluminium, specific heat of aluminium multiplied by change in temperature, that is मान लेते हैं कि equilibrium temperature T है, so T minus initial temperature, that is 20 degree centigrade. This is the gain of heat by aluminium plus mass of water, specific heat of water into T minus 20. This is the gain of heat by water plus mass of iron into specific heat of iron multiplied by T minus 100 should be equal to 0. The total heat lost by all the bodies will be equal to 0. So यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे. अब सॉरी, टी को पहले कॉमन ले लेते हैं. टी इज मल्टीप्लाइड बाय एम ए एस ए प्लस एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू प्लस एम आई इंटू एस आई, और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे बाकी सब चीज़ को. तो एम ए एस ए इंटू 20 प्लस एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू 20 प्लस एम आई एस आई इंटू 100, and therefore T is equal to MASA into 20 plus MW SW into 20 plus MISI into 100 divided by MASA plus MW SW plus MISI. और यहाँ पे वैल्यूज अगर रख देंगे तो एम ए मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज 910 multiplied by 20 plus mass of water, that is 0.2 into specific heat of water 4200 multiplied by 20 plus MISI. MI is 0.2 kg multiplied by specific heat of iron is 470 multiplied by 100 divided by mass of aluminum 0.5 multiplied by 910 plus mass of water 0.2 multiplied by 4200 multiplied by 0.2 into 470, and this comes out to be 25.4 degrees centigrade. So this is the answer. A piece of iron of mass 100 gram is kept inside a furnace for a long time and then put in a calorimeter of water equivalent 10 gram containing 240 gram of water at 20 degrees centigrade. The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degrees centigrade. Find the temperature of the furnace. Specific heat capacity of iron is equal to 470 joule per kg per degree centigrade. तो हमें पता है heat lost will be equal to heat gained by calorimeter plus water. यहाँ पे कैलोरीमीटर भी है और प्लस वाटर भी है,
और लेफ्ट हैंड साइड में हीट लॉस्ट बाय आयरन। तो हीट लॉस्ट बाय आयरन क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू mass into specific heat into temperature difference. So mass of iron is 100 gram multiplied by specific heat is given as 470 joule. 470 और उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4186 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T minus 60 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियल टेम्परेचर इज T, फाइनल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. और हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर. तो कैलोरीमीटर प्लस वाटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है, कैलोरीमीटर का 10 ग्राम वाटर और 240 ग्राम ऑफ वाटर है. सो ये 240 प्लस 10 ये टोटल मास हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस इज 60 minus 20. 60 is final and the 20 is initial temperature. Therefore यहाँ से ले सकते हैं T minus 60 will be equal to 250 multiplied by 40 and multiplied by 4186 divided by 100 into 470. तो therefore यहाँ से T का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा अराउंड 950 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज द फाइनल आंसर. द टेम्परेचर्स ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 different liquids A, B and C, A, B and C are 12 degree centigrade, 19 degree centigrade and 28 degree centigrade respectively. The temperatures when A and B are mixed is 16 degree centigrade and when B and C are mixed is 23 degree centigrade. What will be the temperature when A and C are mixed? तो हम फिर से अप्लाई करेंगे हीट लॉस्ट और हीट गेन बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू 0. सो मास ऑफ ए, सॉरी, तो सबका मास सेम है तो मान लेते हैं m मास सबका यूज किया गया है. तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 16. यहाँ पे पहले जब मिक्स करते हैं ए और बी को तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर होता है. तो 16 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 12 एंड heat this is the heat gained by A and heat lost by B will be equal to mass into specific heat of B into 19 degree centigrade minus 16 degree centigrade. This is the final, this is the initial. So this is the heat lost by B and this is the heat gained by A. ये दोनों सेम होगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं m कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे 4sa इज इक्वल टू 3sb. और यहाँ से हम लिख सकते हैं 4/3sa इज इक्वल टू sb. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फॉर B एंड C को जब मिक्स करते हैं तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ B इंटू 23 माइनस इसका इनिशियल टेम्परेचर है 19 इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ C और यहाँ पे 28 is the initial temperature and final temperature is 23. So यहाँ से हो जाएगा 4sb is equal to 5sc. So यहाँ से हम ले सकते हैं sb is equal to 5/4 sa. SC. Let's say this is equation number 2. So from 1 and 2 हम लोग ले सकते हैं SB दोनों में सेम है. So 4/3 SA is equal to 5/4 SC and this implies
SA by SC is equal to 15 divided by 16. नाउ हमें क्या करना है, A और C को मिक्स करना है और फाइनल टेम्परेचर क्या है ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर T हो जाता है एंड देयरफॉर मास इंटू SA इंटू T माइनस 12, फाइनल टेम्परेचर T और इनिशियल टेम्परेचर 12, दिस इज द हीट गेन्ड बाय A इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय C, सो M इंटू SC इंटू T, sorry, ये 28 is the initial temperature minus final temperature is T. So M cancel out हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं SA by SC is 15 by 16. So 15 by 16 into T minus 12 equal to 28 minus T. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 T अगर ले लेंगे कॉमन तो 15 प्लस 16 is equal to 15 plus into 12 plus 16 into 28, and therefore T is equal to 15 into 12 plus 16 into 28 divided by 15 plus 16, और इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड. So this is the final answer. For 2 centimeter by 2 centimeter by 2 centimeter cubes of ice are taken out from a refrigerator and are put in 200 ml of a drink at 10 degrees centigrade. Find the temperature of the drink when the thermal equilibrium is attained in it. If the ice cubes do not melt completely, find the amount melted. Assume that no heat is lost to the outside of the drink and the container has negligible heat capacity. So find the amount of heat melted ice, और ये assume करना है कि there is no heat lost outside the drink and that the container has negligible heat capacity. Density of ice is given, density of drink is given, specific heat of capacity of the drink given and latent heat of fusion ये भी दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज नॉट ऑल द आइस इज मोल्टन, सो अज्यूम some ice is still not melted. और जैसे हम ये एज्यूम करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ड्रिंक का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं कि ड्रिंक का टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रिंक का टेम्परेचर को लाने के लिए कितना हीट ये गेन करेगा वो फाइंड करते हैं, और दैट विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट लॉस्ट बाय द आइस. तो हीट लॉस्ट बाय द आइस क्या हो जाएगा, मास ऑफ द आइस molten multiplied by latent heat of ice, that will be equal to heat gained by the drink. Heat gained by the drink क्या हो जाएगा, mass of the drink that is 200 ml multiplied by इसका डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो 1 ग्राम पर cc हो जाएगा. तो 1 ये ग्राम में आ गया, 200 ग्राम multiplied by specific heat that is 4200 जूल पर kg है, तो यहाँ पे 4.2 जूल पर ग्राम हो जाएगा. तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 10 डिग्री का डिफरेंस. एंड देयरफॉर मास ऑफ आइस दैट इज मोल्टन इज इक्वल टू 200 इंटू 4.2 into 10 divided by latent heat of fusion of ice that is 3.4 into 10 to the power 5 जूल पर kg है, तो पर ग्राम हो जाएगा 3.4 into 100 that is 340, और इसका वैल्यू आ जाएगा 25 ग्राम. तो इतना आइस मेल्ट होना पड़ेगा टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब एक्चुअली आइस कितना डाला गया है ये हम देखते हैं. तो मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस क्या है? 900 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 0.9 ग्राम पर सीसी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, 4 क्यूब्स है, सो 4 टाइम्स 2 × 2 × 2 दैट इज 8 cc। तो ये हो जाएगा 30.8 ग्राम। सो हम देख रहे हैं कि ये जो आइस जितना डाला है दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आइस विच इज गोइंग टू मेल्ट टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सारा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, कुछ आइस अभी भी बाकी है। और इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा एजम्पशन था कि कुछ आइस बचा हुआ रहेगा, दैट इज़ करेक्ट। और इसका मतलब हुआ कि जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ड्रिंक है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी करेक्ट है। सो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा ड्रिंक का, और मोल्टन आइस का जो मास है दैट इज़ 25 ग्राम हो जाएगा। Indian style of cooling drinking water is to keep it in a pitcher having porous walls. Water comes out to the outer surface very slowly and evaporates. Most of the energy needed to evaporation is taken from the water itself, and the water is cooled down. Assume that a pitcher contains 10 kg of water and 0.2 gram of water comes out per second. 0.2 gram of water comes out per second, assuming no backward heat transfer from the atmosphere to the water. Calculate the time in which the temperature decreases by 5 degree centigrade. Specific heat capacity of water equal to 4200 joule per kg per degree centigrade, and the latent heat of vaporization of water equal to 2.27 into 10 to the power 6 joule per kg. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हीट इवेपोरेशन के लिए लग रहा है दैट कम्स फ्रॉम द वाटर। तो वाटर जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट गेन करेगा द इवेपोरेटिंग वाटर। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग हो जाता है। सो मास ऑफ वाटर पर सेकेंड इज 0.2 ग्राम। सो 0.2 इंटू टी ग्राम पर सेकेंड, सॉरी टी टाइम में 0.2 इंटू टी ग्राम वाटर इवेपोरेट होगा, दैट इज 10 टू द पावर -3, इतना केजी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट दैट इज 2.27 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इतना इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए, राइट, एंड दैट कम्स फ्रॉम द वाटर। तो वाटर का जो हीट चेंज होगा वो इन द वाटर दैट विल बी मास इनटू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो मास ऑफ द वाटर इज गिवन एज 10 kg। यहाँ पे थोड़ा बाहर आ रहा है, बट दिस इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल मास ऑफ द वाटर। तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो रिड्यूस हो रहा है इसे कांस्टेंट मान लेते हैं 10 kg। सो मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 4200 जूल पर kg मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना हीट लॉस हो रहा है बाय वाटर और इतना हीट गेन होगा बाय द इवेपोरेटिंग वाटर, राइट। एंड देयरफॉर यहाँ से T हम फाइंड कर लेंगे। T इज इक्वल टू 10 इंटू 4200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू आ जाएगा 462 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होने में। और इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे सो दैट विल बी 7.7 मिनट्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्यूब ऑफ आयरन डेंसिटी इक्वल टू 8000 kg per meter cube, specific heat capacity equal to 470 joule per kg per Kelvin, is heated to a high temperature and is placed on a large block of ice at 0 degree centigrade. The cube melts the ice below it, displaces the water and sinks. The final equilibrium position in the final equilibrium position, its upper surface just goes inside the ice, Calculate the initial temperature of the cube. Neglect any loss of heat
outside the ice and the cube. The density of ice is equal to 900 kg per meter cube and the latent heat of fusion of ice equal to 3.36 into 10 power 5 जूल पर kg. तो यहाँ पे क्या है कि एक क्यूब है और ये क्यूब जो है इसको हीट करके आइस पे रखा गया है और फाइनल पोजीशन में ये क्या करेगा कि आइस को मेल्ट करेगा और ये धीरे धीरे आइस में पेनिट्रेट करेगा और फाइनल पोजीशन क्या होती है कि इसकी जो अपर सरफेस है क्यूब की ये जस्ट इनसाइड द आइस ये चला जाता है. तो बेसिकली इसने कितना आइस मेल्ट किया, अपने वॉल्यूम के बराबर आइस मेल्ट किया. मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है तो उतना ही आइस को ये मेल्ट करेगा, उतना वॉल्यूम का आइस को. तो मास ऑफ द आयरन ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन. और उसी तरह से मास ऑफ द मोल्टन आइस ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि heat lost by the iron cube is equal to heat gained by the ice, that is the latent heat in form of latent heat of fusion. So अगर क्यूब का इनिशियल टेम्परेचर T है then heat lost by the cube, so that will be mass of the iron multiplied by specific heat of iron multiplied by डेल्टा टी, दैट इज टी माइनस जीरो. इनिशियल टेम्परेचर इज टी और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आइस का टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आइस का टेम्परेचर है. सो दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द आयरन क्यूब. और ऑन द राइट हैंड साइड द गेन ऑफ हीट बाय द आइस वो किस फॉर्म में होगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में. तो मान लेते हैं कि एम आइस अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ है. सो mass of ice multiplied by latent heat of ice. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं mass of iron is volume of the cube multiplied by density of iron into S iron into T is equal to mass of ice is volume into density of ice multiplied by latent heat of ice. यहाँ पे v कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड. अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे. द डी डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8000. सो 8000 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दैट इज 470 जूल पर केजी मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय latent heat that is 3.36 into 10 to the power 5. And therefore we can find T from here. So T will be equal to 900 multiplied by 3.36 into 10 to the power 5 divided by 8000 multiplied by 470 और इसका वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड. So this is the final answer. 1 kg of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 kg of steam at 100 degree centigrade. What will be the composition of the system when thermal equilibrium is reached? Latent heat of fusion of ice equal to 3.36 into 10 to the power 5 joule per kg and latent heat of vaporization of water equal to 2.26 into 10 to the power 6 joule per kg. तो हमारे पास क्या है, एक 1 kg आइस है, 1 kg आइस है और 1 kg स्टीम है. तो 1 kg आइस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वाटर में. वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और फिर इसको हीट करेंगे अप टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और दूसरे तरफ क्या है, स्टीम है मेरे पास. सो स्टीम at 100 steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये स्टीम कंडेंस होगा एंड इट विल रिलीज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और वाटर बन जाएगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी
1 kg आइस को 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने में इसमें जो रिलीज होगी दैट इज़ सॉरी, इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट इज़ 3.36 3.36 इंटू 10⁵ जूल। और यहाँ पे वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी दैट इज़ 1 kg ऑफ वाटर। सो हमें पता है कि इसका जो लेटेंट ही सॉरी वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4.2 इंटू 10⁵ जूल। तो यहाँ पे वाटर को हीट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी। तो ये बेसिकली ये टोटल हो जाएगा इन दोनों प्रोसेस का जो एनर्जी है टोटल दैट विल बी 3.36 प्लस 4.2, सो दैट विल बी 7.56 इंटू 10⁵5 जूल। इतनी एनर्जी चाहिए वाटर आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टीम को कन्वर्ट करना है वाटर में, तो दिस इज 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। तो ये हो जाएगा बेसिकली 22.6 इंटू 10⁵ जूल। ये अगर पूरा का पूरा 1 kg को 1 kg वाटर को हम कन्वर्ट करें वाटर एट 1 kg स्टीम को अगर कन्वर्ट करें 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। एंड ये जो एनर्जी है दोनों प्रोसेस में दिस इज स्मॉलर देन दिस एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा स्टीम कन्वर्ट नहीं होगा आइस में, कुछ m अमाउंट ऑफ आइस मान लेते हैं कि कन्वर्ट हो रहा है। सो मान लेते हैं कि m kg कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाय 22.6 इंटू 10⁵ जूल। इतना एनर्जी रिलीज करेगा और बाकी का जो है वो स्टीम ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7.56 इंटू 10⁵ इक्वल टू m इंटू m विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम स्टीम टू वाटर मल्टीप्लाइड बाय 22.6 इंटू 10⁵। और यहाँ से m ऑफ मास ऑफ स्टीम फ्रॉम मास ऑफ स्टीम टू वाटर that will be equal to 7.56 divided by 22.6 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.335 kg। तो इतना kg ऑफ स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, राइट। एंड देयरफॉर कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 1 kg आइस जो है वो वाटर बन चुका है और यहाँ से 0.335 kg स्टीम वाटर बन चुका है। तो वाटर की टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वाटर इक्वल टू 1.335 kg एंड स्टीम जो रिमेनिंग स्टीम है दैट विल बी 1 माइनस 1 kg माइनस 0.335 kg। ये कन्वर्ट हो गया है, तो ये हो जाएगा 0.665 kg, ये स्टीम रहेगा एंड दिस इज वाटर। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 kg of water from 10 degree centigrade to 35 degree centigrade using an immersion heater rated 1000 watt. Assume that 80% of power input is used to heat the water. Specific heat capacity of water equal to 4200 joule per kg per Kelvin. तो heat required to heat the water from 10 degree centigrade to 35 degree centigrade ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और that much heat should be supplied by this immersion heater. So heat amount of heat will be equal to mass of water multiplied by specific heat of water multiplied by delta T, temperature difference.
तो ये हीट जो रिक्वायर्ड है दैट इज सप्लाइड बाय द इमर्सन हीटर। सो इमर्सन हीटर का पावर दिया हुआ है, सो P ऑफ पावर ऑफ हीटर मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दिया हुआ 80% एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। मास ऑफ वाटर इज 20 kg मल्टीप्लाइड बाय SW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 4200 जूल पर kg per Kelvin multiplied by temperature difference that is 35 minus 10, so 25 is equal to power of heater that is 1000 watt, that is joule per second multiplied by time multiplied by efficiency is 0.8, that is 80%. Therefore T will be equal to 20 into 4200 multiplied by 25 divided by 1000 into 0.8, और ये आ जाएगा 2625 सेकेंड्स। और अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दें सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 44 मिनट्स। सो इतना टाइम लगेगा वाटर को 20 kg वाटर को का टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड लाने में। On a winter day, the temperature of the tap water is 20 degrees centigrade, whereas the room temperature is 5 degrees centigrade. Water is stored in a tank of capacity 0.5 meter cube for household use. If it were possible to use the heat liberated by the water to lift 10 kg mass vertically, how high can it be lifted as the water comes to the room temperature? Take G equal to 10 meter per second square. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.5 मीटर क्यूब का जो टैंक है उसमें जो वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है। अगर इसका हीट को यूज कर सकें हम टू लिफ्ट अ मास, सो टोटल हीट एनर्जी दिट विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो इतना हीट एनर्जी विल कैन बी रिलीज्ड बाय दिस मच वाटर। एंड हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक रेज करते हैं देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू mgh। सो दिस विल बी इक्वल, अगर सारा एनर्जी हम यूज कर सकें इसको लिफ्ट करने में देन इट विल बी mgh, बोथ विल बी इक्वल। सो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे। मास ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 0.5 मीटर क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000। सो ये हो गया मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 4200 जूल पर kg and multiplied by delta t. Delta t is 20 minus 5. 20 degrees is the initial temperature, 5 degree is final temperature. तो ये हो जाएगा delta t is equal to mass of the object that is given as 10 kg multiplied by g. G is also 10 kg multiplied by h. तो therefore h का जो वैल्यू आएगा that is 5 into 4200 multiplied by 15, and this comes out to be 315,000 meter, and this can be written as 315 kilometer. So this is the final answer for the height of the object by which it can be raised. A bullet of mass 20 gram enters into a fixed wooden block with a speed of 40 meter per second and stops in it. Find the change in internal energy during the process. तो एक बुलेट है जिसका कि मास दिया हुआ है 20 ग्राम एंड इट इज़ मूविंग विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक फिक्स्ड वुडन ब्लॉक है, फिक्स्ड है, जिसमें कि बुलेट एंटर करता है और फाइनली स्टॉप कर जाता है यहाँ पे। तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी दैट विल बी चेंज्ड इनटू इंटरनल एनर्जी। ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा।
So delta E in change in internal energy will be equal to change in kinetic energy. तो ये हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ द बुलेट दैट इज 0.02 kg मल्टीप्लाइड बाय 40 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 जूल। सो दिस इज द चेंज, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। सो दिस इज द आंसर। A 50 kg man is running at a speed of 18 km per hour. If all the kinetic energy of the man can be used to increase the temperature of water from 20 degrees centigrade to 30 degrees centigrade, how much water can be heated with this energy? तो मान लेते हैं कि पूरा एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट कर पाए हम। सो हीट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और हीट एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर दैट कैन बी हीटेड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय specific heat of water multiplied by delta T, change in temperature. And right hand side में kinetic energy जो होगा that will be equal to half into m into v square. So therefore mass of water which can be heated will be equal to mv square divided by 2 SW delta T. अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। मास ऑफ द मैन इज 50 kg मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। तो वी यहाँ पे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 किलोमीटर पर आवर को हमें पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी इक्वल टू 18 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into SW is 4200. Specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin multiplied by the change in temperature that is 10 degree centigrade 20 to 30 change हो रहा है, and that will be approximately 0.015 kg, और इसको हम लोग लिख सकते हैं in grams, that will be 15 grams. A brick weighing 4 kg is dropped into 1 meter deep river from a height of 2 meter. Assuming that 80% of the gravitational potential energy is finally converted into thermal energy, find the thermal energy in calorie. तो थर्मल एनर्जी हमें फाइंड करना है। बेसिकली ये रिवर है और यहाँ पे 1 मीटर डीप रिवर है। तो एक ब्रिक को जो है यहाँ से ड्रॉप किया गया विच इज़ एट 2 मीटर हाइट, इस पोजीशन से ड्रॉप किया गया। तो ये ब्रिक जो है कि फाइनली यहाँ पे रिवर बेड पे पहुँच जाएगा, और इस हाइट चेंज में जो इसने एनर्जी लूज किया उसका 80% ऑफ द एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो वो थर्मल एनर्जी हमें फाइंड करना है। सो H विल बी इक्वल टू 80%, heat energy will be equal to 80% of delta PE, change in potential energy. So इसे हम लिख देंगे 0.8 multiplied by 80% is 0.8 multiplied by delta PE. Delta PE is m into g into delta h, change in height. तो ये हो जाएगा 0.8 multiplied by mass of the brick that is 4 kg multiplied by g that is 10 multiplied by delta h. तो delta h कितना हो रहा है, 2 मीटर यहाँ पे और 1 मीटर यहाँ पे, so 3 मीटर. So this is going to be finally 96 joules, or in calories if we want to convert into calories, so 96 divided by 4.2 calories, which is approximately 23 calories. A van of mass 1500 kg traveling at a speed of 54 km per hour is stopped in 10 seconds. Assuming that all the mechanical energy is lost, appears as thermal energy in the brake mechanism. Find the average rate of production of thermal energy in calorie per second. तो हमें फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ
थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब पावर ऑफ थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन ऑन एवरेज। तो ये हो जाएगा हीट एनर्जी टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम। और इसको हम लोग एच इज बेसिकली व्हाट, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो चेंज हो गया किसमें, थर्मल एनर्जी में। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि पूरी तरह एच में कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेल्टा के ई इज हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यहाँ पे हमें पता है कि v जो है वो फाइनली जीरो हो जाता है क्योंकि इट इज स्टॉप्ड। तो अब वैल्यूज़ रख देंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1500 इंटू यू बेसिकली 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 54 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। सो 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम इज 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। तो ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड में, जूल पर सेकेंड। अब इसको हमें बेसिकली कैलोरी पर सेकेंड में फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा 1500, सॉरी इसको डिवाइड कर देते हैं पहले, ये 150 और डिवाइडेड बाय 2, सो 75 इंटू 15 स्क्वायर, इतना जूल पर सेकेंड आ गया। उसको डिवाइड कर देंगे 4.2 से, तो हमें मिल जाएगा कैलोरीज पर सेकेंड, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4000 कैलोरीज पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। A block of mass 100 gram slides on a rough horizontal surface. If the speed of the block decreases from 10 meter per second to 5 meter per second, find the thermal energy developed in the process. तो बेसिकली जब ब्लॉक इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसकी स्पीड फाइनली जो है कि 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, और यहाँ पे क्या होगा कि थर्मल एनर्जी डेवलप होगा। सो ये जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगा H इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो डेल्टा के ई। सो डेल्टा के ई विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो माइनस के ई फाइनल, और ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। So half into m is 0.1 kg multiplied by v square u square minus v square, that is 10 square minus 5 square। तो ये हो जाएगा 75 into 0.1 divided by 2, and that will be 3.75 joule। तो इतनी थर्मल एनर्जी डेवलप होगी इन द प्रोसेस। Two blocks of masses 10 kg and 20 kg moving at speeds of 10 meter per second and 20 meter per second respectively in opposite directions approach each other and collide. If the collision is completely inelastic, find the thermal energy developed in the process। तो ये थर्मल एनर्जी हमें फाइंड करना है। दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है 10 kg का, 10 kg का ब्लॉक है विच इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ब्लॉक है जो कि 20 kg का ब्लॉक है, दिस इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड एंड मूव टुगेदर। सो ये कोलाइड होगा और दोनों कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे। तो 30 kg टोटल मास हो जाएगा, और दिस विल हैव सम फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v है। So by momentum conservation we can find the final velocity. So mass total mass multiplied by v will be equal to initial moment. This is the final momentum, and this will be equal to initial momentum, that is 10 into 10 minus 20 into 20. So v का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -300 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे मूव करेगा, एंड माइनस सिग्निफाइज दैट ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगी वो क्या होगा,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं के ई इनिशियल, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनली, दैट इज के फाइनल, के ई फाइनल। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द हीट thermal energy developed. So H will be equal to KE initial minus KE final। और KE initial जो है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों का हो जाएगा हाफ इंटू M1 इंटू U1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू M2 इंटू U2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों का मिला के, और माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ इंटू M1 प्लस M2, ये दोनों का मास कंबाइंड मास है, इनटू v स्क्वायर, ये v दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 20 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 30 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 500 प्लस 4000 माइनस 1500 जूल, और दैट विल कम आउट टू बी 3000 जूल। तो इतनी एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। आफ्टर द कोलिजन इट राइजेस अप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। Assume that 40% of the mechanical energy lost goes as thermal energy into the ball. Calculate the rise in the temperature of the ball in the collision. Heat capacity of the ball is 800 joule per Kelvin. तो बेसिकली एक बॉल है जो कि 2 मीटर के हाइट से हम इसको ड्रॉप करते हैं, दिस इज द फ्लोर, यहाँ पे कोलाइड होता है, और आफ्टर कोलिजन ये 1.5 मीटर के हाइट तक राइज कर जाता है। तो देर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो बिफोर कोलिजन ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2 मीटर था, और आफ्टर कोलिजन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एम जी इंटू 1.5 मीटर। सो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इंटू हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और उसका 40% जो है कहाँ जाता है, बॉल में चला जाता है। सो एच ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द बॉल, thermal energy of the ball is equal to, we can say 40% of change in potential energy delta PE। तो डेल्टा P इसको हम लोग लिख सकते हैं 40% मतलब 0.4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा PE। and heat of the ball, heat thermal energy of the ball is m into specific heat capacity of the ball। बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉल होना चाहिए, दिस इज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इट इज़ नॉट हीट कैपेसिटी, इट शुड बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ पे इसका यूनिट होना चाहिए जूल पर केजी पर केल्विन। सो दिस इज एक्चुअली देयर सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम अज्यूम करते हैं तो उसका थर्मल एनर्जी हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉल, एंड दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड क्या है 0.4 इंटू डेल्टा पीई। सो डेल्टा पीई इज एम इंटू जी इंटू डेल्टा एच, चेंज इन हाइट, और यहाँ पे एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी रहता तो हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा थर्मल एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू डेल्टा एच मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो m है, नाउ वी नीड m, क्योंकि यहाँ पे m कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मास चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते इस तरह से। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अज्यूम करेंगे तभी जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे m और m कैंसिल आउट हो गया, और देयरफॉर वी कैन राइट rise in temperature, that is delta T will be equal to 0.4 into G into delta H divided by S। तो ये हो जाएगा 0.4 into 10 into delta H is 2 minus 1.5, that is 0.5 divided by S। S is given as 800, so 800 यहाँ पे डाल देंगे, और ये हो जाएगा
0.4 into 0.5, that is 20 divided by 80 into 100. So this is 1 by 400 degree centigrade, or that will come up to be 2.5 into 10 to the power minus 3 degree centigrade. So this is the rise in temperature of the ball. A copper cube of mass 200 grams slides down a rough inclined plane of inclination 37 degree at a constant speed. Assume that any loss in mechanical energy goes into copper block as thermal energy. Find the increase in the temperature of the block as it slides down through 60 centimeter. The specific heat capacity of copper equal to 420 joule per kg per Kelvin. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक. तो एक ब्लॉक इस तरह से दिया हुआ है जो कि 37 डिग्री इंक्लाइन पे मूव कर रहा है फ्रॉम से दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये जो लेंथ दिया हुआ है दिस इज 60 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर से स्लाइड करता है. तो बेसिकली इसकी चेंज इन हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज चेंज इन हाइट डेल्टा एच, दैट विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय साइन 37. सो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर का चेंज इन हाइट. सो दैट मच विल करस्पॉन्ड टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी सेम, दैट विल बी कांस्टेंट, बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा. एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H विल बी इक्वल टू डेल्टा पीई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो. सो और H को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉल मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉल multiplied by delta T. So mass of the block and the specific heat capacity of the block multiplied by delta T will be equal to change in potential energy. Change in potential energy is mass into G into delta H. यहाँ पे mass cancel out हो जाएगा, and therefore delta T will be equal to G into delta H divided by S. अब G का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 10 और डेल्टा H का वैल्यू रख देंगे 36 सेंटीमीटर, दैट इज 0.36 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 420. और ये कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 8.6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ब्लॉक का टेम्परेचर इतना डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर जाएगा. मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 6000 kg per meter cube and mass 1.2 kg is suspended through a spring of spring constant 200 Newton per meter. The spring block system is dipped in water kept in vessel. The water has a mass of 260 gram and the block is at a height of 40 centimeter above the bottom of the vessel. If the support to the spring is broken, what will be the rise in the temperature of the water? The specific heat capacity of the block is 250 joule per kg per Kelvin, and that of water is 4200 joule per kg per Kelvin. Heat capacities of vessel and the springs are negligible. तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि एक वेसल है जिसमें वाटर भरा हुआ है और एक स्प्रिंग है जो कि वाटर में इमर्स्ड है, और इससे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और ब्लॉक इज एट हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर. इसकी हाइट बॉटम से 40 सेंटीमीटर है. तो अगर ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो ये स्प्रिंग और ब्लॉक ये नीचे वाटर में जाएगा, एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और इसकी पोटेंशियल ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है दे विल बी लॉस्ट इन द वाटर एज हीट. तो ये वाटर और ब्लॉक ये दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी गेटिंग फ्रॉम द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई,
ये हो, यहाँ पे दो तरह की एनर्जी होगी, एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर एज एक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ द ब्लॉक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी एम जी इंटू डेल्टा एच। और यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे जो वाटर था दैट विल गो अप, तो ब्लॉक नीचे आएगा और वाटर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन होगी और इसकी लॉस होगी। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा v टाइम्स रो, ये मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय g इंटू डेल्टा एच, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन फाइंड दिस हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर। तो what is x? x is basically the extension of the spring, और उसे हम फाइंड कर सकते हैं kx will be equal to mg minus b. तो x will be equal to mg minus b by k, that means mg को हम लोग लिख सकते हैं v इंटू d इंटू g माइनस v इंटू रो इंटू g डिवाइडेड बाय k। ये हो जाएगा x का वैल्यू, और यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो v इंटू जी कॉमन आ जाएगा, v g, और यहाँ पे आ जाएगा d माइनस रो डिवाइडेड बाय k स्क्वायर। सो दिस इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस mg को हम लोग लिख सकते हैं vdg, तो यहाँ पे vg और डेल्टा h कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d माइनस रो। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड वाटर। सो अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे के स्क्वायर है और के, तो नीचे एक के बच जाएगा, तो v इज बेसिकली 1.2 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक दैट इज 6000, ये v हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10, g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 6000 माइनस 1000, 6000 इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक और 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो ये हो जाएगा 5000 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इज 200 न्यूटन पर मीटर, और प्लस वी जी, तो v का वैल्यू फिर से हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय g इज 10 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा h इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6000 माइनस 1000 दैट इज 5000। सो ये जो पूरा वैल्यू आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 4.25 जूल। टोटल एनर्जी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 4.25 जूल, एंड देयरफॉर ये जो H है इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू H, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा PE, और यहाँ से H का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर mw into SW multiplied by delta T, rise of in temperature of water plus rise in temperature of block, so thermal energy rise of the block that is mass of the block plus mass of the block, हम लोगों ने m यूज़ किया है यहाँ पे, तो यहाँ भी m यूज़ करेंगे, तो m into s of the block multiplied by delta T and that will be equal to 4.25 जूल। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो डेल्टा ऑफ टी का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4.25 डिवाइडेड बाय mw sw प्लस m into m of the block into s of the block, therefore delta t will be equal to 4.25, और मास ऑफ द वाटर जो है वो दिया हुआ है 260 ग्राम, दैट इज 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 4200 प्लस मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है
1.2 kg, 1.2 multiplied by 250 is the S of the block, the specific heat of the block, और ये आ जाएगा approximately 0.003 degree centigrade. So this is the rise in temperature of the water and the block.